Morning, children. Today we will start a new lesson of class 8, 3 questions. This is the first lesson of your literature book. This lesson has been written by Leo Tolstoy. He was born in Russia in 1828. And one thing which I want to tell you about the writer is that he was a firm believer of non-violence. And do you know, children? Even Mahatma Gandhi, whom we know for non-violence, was greatly impressed by Leo Tolstoy's writings. Okay, let's get back to the lesson. Now, first of all, tell me, if you have to start a new work, will you wait for an auspicious time or will you start it immediately? What will you do? And my second question is, which occupation is the most important occupation in your opinion? And whom do you think are the most important persons? Soldiers, doctors, leaders, priests, etc. Think about the answers and write it in the comment box. Okay? Now let's read the lesson. Let's see what is in this lesson. 3 questions. As the title suggests that this is the lesson about any 3 questions. Let's see what are they. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. Here is a king, and what he wanted to know? He wanted to know the right time to begin anything, and he wanted to know the right people, ठीक है, whom to listen to and whom to avoid. किसे सुनना चाहिए, किसे नहीं सुनना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए. He wanted to know about the right people. And third thing, he wanted to know about the most important thing. What should he do or what should he not do? Okay? So that he would never fail in anything. तो ये 3 क्वेश्चन उसके माइंड में थे कि कौन सा राइट टाइम है कुछ भी शुरू करने के लिए, कौन से राइट पीपल कौन सा है जो कि जिसकी बात सुननी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed, means announce करवा दिया, घोषणा करवा दी, throughout his kingdom, that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और उसने घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि वो ऐसे पर्सन को, ऐसे आदमी को ग्रेट रिवॉर्ड देगा जो कि उसे बताएगा कि व्हाट वाज द राइट टाइम टू डू एनी एक्शन, और who were the most necessary people and how he might know that what was the most important thing to do. And learned men came to the king. और क्या हुआ? जब रिवॉर्ड के बारे में बोला गया तो बहुत सारे विद्वान जो लोग थे वो किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बट दे डिफरेंटली आंसर्स हिज क्वेश्चंस. अलग अलग तरीके से उन लोगों ने आंसर दिया, एक ही आंसर नहीं था उन लोगों का. व्हाट दे आंसर्ड? In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. तो एक पर्सन ने क्या कहा उस पहले क्वेश्चन, यानी कि कौन सा राइट टाइम है कोई काम शुरू करने के लिए, तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि एडवांस में एक टेबल बना लेना चाहिए डेज, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग, और स्ट्रिक्टली उसी पे चलना चाहिए, मीन्स टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए. ओनली दस सेड दे
could everything to be done at its proper time, और तभी कोई भी चीज अपने सही काम पर सही समय पर हो पाएगी. ओके तो ये सिंपली कह रहा है कि हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तभी सही समय पे काम होगी, जैसे कि हम लोग करते हैं. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. और दूसरे ने क्या कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना काम करने के पहले ही कि सही समय कौन सा है किसी काम को करने का. बट दैट not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. लेकिन फिर भी समय बेकार में गंवाने की जगह क्या करना चाहिए, जो जरूरी चीज है उसमें समय लगाना चाहिए और जरूरी काम को करना चाहिए. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. और दूसरे ने मीन्स नेक्स्ट पर्सन ने क्या कह दिया कि किंग कितना भी अटेंटिव हो, लेकिन ये जानना इम्पॉसिबल है किसी भी आदमी के लिए कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, ये करेक्टली डिसाइड करना इम्पॉसिबल है. बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. काउंसिल मीन्स एक टीम होती है ना कोर्ट में, तो उसके बारे में बोल रहा है कि बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. लेकिन उसके पास एक विद्वानों की जो है एक टीम होनी चाहिए जो कि उसे बताए, ये बताने में हेल्प कर सके कि किसी भी काम को करने का प्रॉपर टाइम कौन सा हो. But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action one must consult magicians. और किसी ने तो ये तक कह दिया कि ये सिर्फ एक जादूगर का काम हो सकता है ये जानना कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा हो सकता है. इसलिए किसी भी पर्सन को जो ये जानना चाहता है सही समय के बारे में, उसे मैजिशियंस से कंसल्ट करना चाहिए. Isn't it funny? Okay. Now next, equally various were the answers to the second question. और ये तो थे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सही समय कौन सा होना चाहिए किसी काम को करने का. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, और ऐसे ही वेरियस आंसर्स आए सेकेंड क्वेश्चंस के भी. सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स. किसी ने कहा कि वो आदमी जिसकी कि एक राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है उसका सलाहकार, काउंसलर्स. अदर्स द प्रीस्ट. दूसरे ने कहा कि पुजारी होते हैं. अदर्स द डॉक्टर्स. किसी ने डॉक्टर के बारे में कहा कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और किसी ने कहा कि जो वॉरियर्स होते हैं योद्धा वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, सबसे ज़रूरी, नेसेसरी. टू द थर्ड क्वेश्चन, और अब बारी आई किसकी, थर्ड क्वेश्चन की. रिमेंबर देर आर 3 क्वेश्चंस. तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस. तो ये बात क्या थी कि सबसे जरूरी चीज क्या है. ओके तो सबसे जरूरी पर्सन्स कौन है, उनके बाद नंबर आई सबसे जरूरी चीज क्या है. तो किसी ने रिप्लाई किया कि सबसे जरूरी चीज इस विश्व का है साइंस, विज्ञान. अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर. किसी ने कहा कि युद्ध कला जो है ओके वो सबसे जरूरी चीज है. एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप. किसी ने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ करने की जो कला होती है, वो श्रद्धा जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म जो है बहुत जरूरी है. ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट. सभी आंसर्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे.
द किंग अग्रीड विथ नन ऑफ देम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा को किसी का भी आंसर पसंद नहीं आया, वो किसी के साथ एग्री नहीं कर रहा था। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और इसीलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, लेकिन वो अभी भी अपने क्वेश्चंस के सही जवाब जानना चाहता था, वो ढूंढ रहा था। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम। वो जो है उसने क्या डिसाइड किया, उस हर्मिट, उस साधु के पास जाने का जो कि अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ओके, नाउ द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. Now, what happened? He went to the hermit, and where the hermit lived? The hermit lived in a wood. Wood means forest, जंगल। तो हर्मिट जो है साधु, वो जंगल में रहता था, और वो जंगल कभी नहीं छोड़ता था, वो वहीं पे हमेशा रहता था। और सबसे बड़ी बात उस साधु की क्या थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन पर्सन को ही अपने यहाँ रिसीव करता था, मीन्स वेलकम करता था। इसलिए राजा जो थे वो ही पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, वो सिंपल कपड़े पहन के कॉमन मैन बन के गए। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और वहां पे पहुंचने के पहले, हर्मिट के पास पहुंचने के, हर्मिट के घर पहुंचने के पहले, या यू कैन से दैट आश्रम पहुंचने के पहले, उन्होंने क्या किया, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गए। एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले वो हर्मिट के पास गए। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, द हर्मिट वाज डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा हर्मिट के पास पहुंचे, उस समय हर्मिट क्या कर रहे थे, साधु क्या कर रहे थे, वो जमीन खोद रहे थे। ओके, ठीक अपने झोपड़ी के सामने की जमीन को वो खोद रहे थे। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग, और ये देखकर राजा ने उन्हें क्या किया, ग्रीट किया, मीन्स अभिवादन किया। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो कैसे करते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और उसके बाद वो क्या करने लगा, खोदने लगा जमीन। द हर्मिट वॉज फ्राइल एंड वीक, एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्नड अ लिटिल अर्थ, ही ब्रीथेड हैविली। अब क्या हुआ कि राजा के ग्रीट करने के बाद भी हर्मिट जो है जमीन खोदने लग गया। तो हर्मिट जो है साधु, वो बहुत ही कमजोर जैसा दिख रहा था, और हर बार जब वो अपने स्पेड से जमीन पर मारता था तो वो सांस लेता था जोर से। ठीक है, जैसे थक जाने के बाद हम लोग कैसे लेते हैं, उस तरह से। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा ने उनके पास जाकर कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने क्या कहा उनके पास जाके, कि मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? कैसे मैं ये जानूं कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, और मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है? एंड टू whom शुड आई therefore पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट, और किस चीज़ को मुझे किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दूसरों से, और what affairs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, ओके, जिस पे मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। हर्मिट ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं किया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। वो क्या किया, सिर्फ उसके हाथ पे ऐसे थपथपाया और अपने काम में लग गया। You are tired. You can see here. Here some word meanings are given. Hermit recommenced. Okay. You can note down these
word meanings in your copy and learn them. Now let's move on. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. तो किंग ने क्या कहा, देखा क्या कि वो काम करते ही जा रहे थे, तो राजा ने कहा कि आप थके हुए हैं, लाइए मैं आपके लिए काम कर दूं. ओके, मुझे अपना स्पेड दे दीजिए, मैं कर दूं. थैंक्स, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. और वो वहीं ग्राउंड पर बैठ गए, साधु जो थे, और उन्होंने अपना स्पेड किंग को दे दिया और कहा थैंक्स. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. जब वो खोदने लगे और 2 बेड्स तक खोद दिया उन्होंने, यानी कि क्या कह सकते हो तुम, 2 बांस, जैसे हम लोग किसी भी चीज से नापते हैं ना, तो वो समझ लो ना कि 2 हाथ अगर मानते हैं उसको, तो 2 हाथ तक जब गड्ढा कर दिया, तो राजा रुका. एंड ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन अगेन. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. फिर से हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट रोज stretched out his hand for the spade and said. लेकिन वो उठा. ओके, here rose means not गुलाब. गुलाब नहीं है यहाँ इसका मीनिंग. दिस इज नॉट अ फ्लावर, इट इज राइज, रोज, राइजन. ओके, ये वर्ब है राइज का सेकेंड फॉर्म. तो वो उठा और उसने अपना हाथ फैला के स्पेड लिया और राजा को क्या बोला, नाउ रेस्ट अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लो, एंड लेट मी वर्क अ बिट, मुझे थोड़ा काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और वो जमीन खोदते रहे. 1 hour passed एंड अनदर. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीता. द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. अब क्या हुआ, सूरज जो है छिपने लगा पेड़ के पीछे, यानी कि दिन ढलने लग गया. एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and will return home. और जब शाम होने लग गई तो राजा ने क्या किया, अंत में स्पेड को जो है जमीन पे रख दिया. स्पेड इज अ टूल, ओके, फ्रॉम विच वी कैन डिग द ग्राउंड, जिसको कुदाल कहते हैं हम लोग हिंदी में. दैट इज कॉल्ड स्पेड. तो स्पेड को ग्राउंड पे रख दिया और हर्मिट को बोला कि वाइज मैन, मैं आपके लिए आया. आई केम टू यू बिकॉज आई वॉन्ट एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चन. बट इफ यू विल नॉट गिव आंसर, इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव द आंसर, टेल मी दैट थिंग सो दैट आई कैन रिटर्न होम. ओके, ये राजा ने कहा हर्मिट को. हियर कम्स समवन रनिंग. तब तक क्या हुआ कि कोई दौड़ता हुआ आया. सेड द हर्मिट. ओके, तो हर्मिट कहता है कि देखो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. लेट अस सी हु इट इज. चलो देखते हैं वो कौन है. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड. तब तक उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आया जंगलों में से कहीं से. द मैन हेल्ड हिज hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. तो उस आदमी ने अपना पेट पकड़ा हुआ था और ब्लड निकल रहा था उसमें से. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. You can see in the picture. Look at this. This is a man. He is badly wounded on his stomach and he fell down on the ground. Okay, कमजोरी से वो गिर गया क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था ना, तो वो फेंट कर गया. Now what the king did? The king and the hermit unfastened the man's clothing. सबसे पहले किंग और साधु ने मिलके उसके कपड़ों को ढीला किया. There was a large wound in his stomach. बहुत बड़ा घाव लगा हुआ था उसके स्टमक में. The king watched it
as best as he could. जितनी अच्छी तरह से वो साफ कर सकता था उसने घाव को साफ किया राजा ने, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. और अपने रुमाल से और हर्मिट के टॉवेल से उसने उसमें बैंडेज बांध दिया, पट्टी जैसा बांध दिया उसके घाव पर. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन ब्लड बहना बंद नहीं हुआ. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज. और राजा ने बार बार उसका बैंडेज जो है रिमूव किया, सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड. क्योंकि उनके पास कपड़ा नहीं था ज़्यादा, इसलिए राजा ने क्या किया, बार बार भींग जाता था वो कपड़ा ब्लड से, बार बार उसको खोलता था, बार बार धोता था और फिर उसको रीबैंडेज्ड यानी फिर से घाव पे बांधता था. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. और अंत में जब ब्लड रुक गया बहना तो उस आदमी को थोड़ा होश आया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. ओके, उसे प्यास लगी थी तो उसने पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो राजा ने क्या किया कि ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर लाया और उसे पीने के लिए दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट. और तब तक इधर क्या हुई थी, सूरज जो है ढल गया था. ओके, एंड इट हैड बिकम कूल. और ठंडा हो गया था थोड़ा, क्योंकि जब सूरज रहता है तभी ना गर्मी रहता है. सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. और अब क्या हुआ कि हर्मिट की मदद से वो उस घायल आदमी को हट के अंदर ले आया एंड लेड हिम ऑन द बेड. और बेड पर लिटा दिया. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वॉज क्वाइट. और बेड पर लेटने के बाद उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया. बट द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउज्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो फेल अस्लीप. लेकिन राजा जो है बुरी तरह से थक गया था उस काम से जो उसने किया था और चलते चलते, इसलिए वो वहीं पर जमीन पर ही सो गया. सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट. ओके, वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. और जब वो सुबह में उठा, रात भर सोया रहा, और जब वो सुबह में उठा तो उसे याद आया कि क्या क्या हुआ था, कैसे उस आदमी को उन लोगों ने बेड पे लिटाया था. और वो आदमी जो है अब अपने शाइनिंग आईज से राजा को देख रहा था. यू कैन सी हियर सम वर्ड मीनिंग्स आर गिवन. मोर्निंग, ग्रोनिंग, थ्रेशोल्ड, एंट्रेंस, इंटेंटली, पेइंग फुल अटेंशन. यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तो तब तक उस दाढ़ी वाले आदमी ने क्या कहा राजा से, Forgive me, माफ कर दीजिए मुझे. When he saw that the king was awake and was looking at him. जब उसने देखा कि राजा भी उठ गया है और उसकी ओर देख रहा तो उसने माफी मांगी. Why he was asking for forgiveness? Let's see. I do not know you. तो राजा क्या बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. तो क्या बोलता है वो आदमी कि मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक. तो मैं जानता था कि आप जो है अकेले हर्मिट से मिलने आने वाले हैं और मैं वहां पर रास्ते में कहाँ था, छिपा हुआ था आपके लिए कि मैं आपको मार सकूं. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप लौटे नहीं.
So I came out from my ambush to find out. Ambush किसको कह सकते हैं? मीन्स हिडन प्लेस, जहाँ मैं छिपा हुआ था. तो मैं जो है वहाँ से बाहर आया ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स एंड दे रिकग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी. तो जैसे ही मैं बाहर आया तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई escaped फ्रॉम them बट शुड हैव bled टू डेथ. मैं उनसे तो बचता हुआ भागा, लेकिन शायद मैं मर जाता. हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. अगर आप मेरे घाव में पट्टी नहीं करते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने आपको मारने की इच्छा रखी और आपने मेरा जीवन बचाया. नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. और अगर आप चाहते हैं मैं बच गया और आप चाहें तो मैं जीवन भर आपके लिए आपका नौकर बनकर, वफादार स्लेव बनकर रहूंगा और मेरे सन्स भी वैसा ही करेंगे, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily. राजा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि अपने दुश्मन से इतने आसानी से उसका मित्रता हो गया, शांति से, बहुत ही इजीली, जिसको कहते हैं कि उसने कोई एफर्ट नहीं किया. वो तो जानता भी नहीं था कि वो अपने दुश्मन की मदद कर रहा है. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड. एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स and his own physician to attend upon him and promised to restore his property. और उसने ना ही सिर्फ उसे माफ किया, अपना दोस्त भी बना लिया, और उसने यहाँ तक कहा राजा ने कि वो अपने नौकर भेज देगा और अपना फिजिशियन भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. और राजा ने प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी लौटा देगा. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. और उसके बाद जब wounded man जो है चला गया तो किंग जो है आया बाहर निकला और उसने चारों ओर देखा हर्मिट कहाँ है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर. क्योंकि राजा एक बार फिर से हर्मिट से रिक्वेस्ट करना चाहता था कि वो उसके क्वेश्चन के आंसर दे दे. ओके. The hermit was outside on his knees. और hermit कहाँ थे? साधु कहाँ बैठे हुए थे? बाहर बैठे थे अपने घुटनों पर. Sowing seeds in the beds. और वो जो बेड्स उन्होंने खोदे थे, गड्ढे, उसमें वो बीज बो रहे थे. That had been dug the day before. जो जस्ट उस दिन के पहले जो राजा ने खोदे थे. The king approached him and said. राजा उनके पास आए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. लास्टली आई एम बेगिंग फॉर माई आंसर्स. ठीक है, राजा ने बोला कि मैं अंत में भी आपसे प्रे करता हूं कि प्लीज मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम. और वो अभी भी उसी तरह से बैठे रहे और राजा की ओर देखा जो कि वहां पे खड़े थे उनके पास. हाउ आंसर्ड. कैसे आंसर मिला? व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द किंग. राजा अभी भी कंफ्यूज था, इसलिए उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. क्या तुमने नहीं देखा? हर्मिट ने आंसर किया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. अगर तुम मेरे लिए नहीं रुकते सॉरी अगर तुम मेरे लिए नहीं रुकते और तुम्हें मेरी कमजोरी के कारण ये बेड नहीं खोदना पड़ता, ये गड्ढा नहीं बनाना पड़ता, पूरा दिन नहीं लगता, तो तुम अपने रास्ते चले गए होते और ये आदमी शायद तुम पे अटैक कर देता और तुम पछता रहे होते कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था तुम्हारे लिए? जब तुमने ये गड्ढे खोदे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन.
और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा था? मेरे लिए कुछ अच्छा करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन ran to us, the most important time was when you were attending upon him. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था तुम्हारे लिए जब तुमने उस घायल आदमी को अटेंड किया। For if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और अगर तुमने उसके घाव में पट्टी नहीं की होती तो शायद वो मर जाता तुम्हारे साथ बिना शांति बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और इसलिए वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम बन गया। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। और उस हर्मिट ने क्या कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? जब हमारे पास पावर है, मीन्स द प्रेजेंट टाइम। हम लोग पावर में कब रहते हैं? ओनली एट द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि यस्टरडे बीत चुका और फ्यूचर हम लोग जानते नहीं हैं। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ whom यू आर, और सबसे नेसेसरी आदमी वही है जो उस समय तुम्हारे साथ है, मीन्स द प्रेजेंट मैन हु इज विथ यू। एंड फॉर नो मैन नोज whether he will ever have dealing with anyone else, and the most important affair is to do him good. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनका अच्छा करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, क्योंकि इसी काम के लिए भगवान ने हम सबों को इस जीवन में भेजा है। ओके, तो व्हाट वॉज द 3 आंसर्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट टाइम, most important person is the person who is with you or the persons who are with you. Okay, and most important affair means most important thing what you should do is to do good with that person or persons. Okay, hope you like this story, children. In the next video we will do the exercises related to this story. Thank you. Subscribe my channel and don't forget to share it with your friends.